Hello friends, I'm Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a very new topic, that is determiners. So determiners are those words that are prefixed before nouns. मतलब कि determiners ऐसे अक्षर होते हैं जो कि हम noun से पहले लगाए जाते हैं to determine their meaning, उनका meaning को determine करने के लिए. They can be divided into the following types. और आगे किन किन types में वो divide हो सकते हैं? The first one is articles. Articles तो I guess आपको पता होगा, होने चाहिए. A and the, demonstratives this, that, these, those. So possessives में आ जाएगा my, your, our, his, her, its and their. ऐसे indefinite adjectives and others. So now let's discuss each of them one by one. The first one is articles. The two indefinite articles in English language are a and an. ये पता होना चाहिए. English language के अंदर जो दो indefinite articles है वो कौन से? a और an. और definite वाला कौन सा है? the. Now use of a takes place in the following instances, in places where the following word starts with a consonant sound. अब कोई अक्षर जो consonant sound से start होता है. Consonants क्या होते हैं? A, E, I, O, U के अलावा जितने भी alphabets हैं English language में तो वो क्या हो जाते हैं? Consonants. Also a is used where the following word is a singular countable noun. मतलब कि एक singular countable noun के साथ भी हम क्या use करते हैं? A. Places where the following word is a singular countable noun starts with a vowel sound. अगर vowel sound से start होता है तो हम क्या use करते हैं? An. Example, I have never seen a gun. मैंने कभी गन नहीं देखी. अब गन क्या है? G क्या है? Consonant sound. तो हम लोग क्या use करते हैं? A. I saw a sports bike at the store today. The luxury car is a rich man's vehicle. My brother has joined the NDA. अब इसमें क्या है? Joined the NDA. अब NDA हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं कि NDA ज्वाइन करी है मेरे ब्रदर ने, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? the. Now demonstratives. The demonstrative determiners in the English language are this, that, these and those. The demonstrative determiner that is used to avoid repetition of a preceding noun. My shorts are better than those of my brother. अब हम बार बार तो नहीं यूज़ करेंगे ना, my shorts are better than the shorts of my brother. अब इसमें क्या है? my shorts फिर repeat हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे? those. My shorts are better than those of my brother. मतलब कि जो मेरी shorts है मेरे भाई के shorts से ज़्यादा better है. Our defense academics are better than those of Afghanistan. इसमें भी सेम केस बन रहा. The demonstrative determiner this is used to refer to a person or a person's thing or things near to the speaker. For example, this is the best coffee I have had. मतलब कि जो ये वाली कॉफ़ी है आज तक की बेस्ट कॉफ़ी है जितनी मैंने पी है. अब इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? दिस हम क्यों यूज़ करते हैं? कब यूज़ करेंगे? जब जो चीज़ हम कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, कॉफ़ी जो स्पीकर जो बोल रहा है उसके एकदम पास में पड़ी है तो इसलिए बोल रहा है दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैव एवर हैड. These magazines are very good. अगर हमें प्लूरल में यूज़ करना है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? These. The demonstrative determiner that refers to a person, persons or thing or things far from the speaker. This किसके लिए यूज़ कर रहे थे? स्पीकर के एकदम नियर वाली चीज़ के लिए. अब हम that किसके लिए यूज़ करेंगे? स्पीकर से जो थोड़ी दूर होंगी. फॉर एग्जाम्पल, गेट दैट डॉग आउट ऑफ द हाउस. मतलब कि वो वाले डॉग को घर से निकालो. पास में नहीं है, दूर है, तो हम लोग क्या यूज़ करें? दैट. थ्रो अवे दोज शूज इन द गार्बेज. दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज. थ्रो अवे मतलब कि फेंक दो वो वाले शूज गार्बेज में. नाउ possessives. The possessive determiners in the English language are my, your, our, his, her, its and their. These are used to show or determine the ownership of a certain thing. मतलब कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मुझे उसकी अपनी ownership दिखानी है कि ये चीज़ मेरी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? possessives. For example, this is my bike. ये बाइक मेरी है. It is their house. वो वाला ये घर किनका है? उनका है. तो उसमें their और यहाँ पर my क्या हो जाएगा? possessive. Indefinite adjectives. Example, some. मतलब कुछ. The indefinite adjective some is generally used in affirmative sentences with uncountable and plural countable nouns. For example, I have some good ideas on the project. अब हम जो ideas है count तो नहीं करके बता रहा ना वो कितने हैं. उसने बोला मेरे पास कुछ अच्छे ideas हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? some. अब any. It is used in questions when you want to ask whether something exists or not. मतलब any हम वो वाले चीज़ों में यूज़ करेंगे जब हम पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं. इट इज़ ऑल्सो यूज, ज़्यादातर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड एनी हेल्प. मुझे कोई मदद नहीं चाहिए.
डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर? इस चीज़ के ऊपर, इस मैटर के ऊपर क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है? अब इसमें क्या, हम क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो इसमें वही है, डू यू हैव एनी एडवाइस। लिटिल एंड मच, दीज आर यूज टू रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, मतलब कि जब हमें अमाउंट या क्वांटिटी बतानी हो तब हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल और मच। लिटिल इज यूज टू एम्फेसाइज दैट देयर इज अ स्मॉल अमाउंट। अब लिटिल क्या बोलता है कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट है, उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है कि स्मॉल अमाउंट अवेलेबल है। Whereas much is used for emphasizing on large quantities, और अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ अवेलेबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मच। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई, मुझे कुछ समय दुबई में बिताना है, मतलब पहले ही टाइम कम है तो हम उसमें से भी थोड़ा सा ले रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल। आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल फॉर माई एग्ज़ाम, मैंने अपने पेपर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम पढ़ा है। डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविजन, क्या तुम्हें टेलीविजन देखना ज़्यादा पसंद है। फ्यू एंड मैनी, दीज आर मोस्टली यूज टू रेफर टू अ नंबर। अब ये फ्यू और मैनी किसके लिए होता है, अगर हमें नंबर में स्पेसिफिकली बताना हो कुछ। दे आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउंस, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउंस के पहले यूज होते हैं। फ्यू एम्फेसाइजेज अ स्मॉलर नंबर एंड मैनी रेफर्स टू मोर नंबर, ये तो आपको पता होगा। फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स, बहुत ही कम स्टूडेंट्स आज क्लास के लिए आए। मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम, बहुत सारे लोग इंडियन क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए गए। दे स्टेड इन द USA फॉर अ फ्यू डेज, वो US में स्टे करके आए कुछ दिन के लिए। अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं, काउंटेबल चीज़ बता रहे हैं, तो फ्यू और क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मैनी। मोर, लेस एंड फ्यूअर, they are mostly used as comparative determiners. more is used before plural, more किसके लिए यूज होता है, plural और uncountable noun के लिए। to refer to a quantity or amount which is greater than another quantity, मतलब कि हमारे पास, हम कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ अगर अवेलेबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, more। फॉर एग्जाम्पल, ही डज मच मोर कार्डियो देन आई डू, वो मुझसे ज़्यादा कार्डियो करता है। अब इसमें क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मोर। द पुअर हैव लेस असेस टू क्लीनलीनेस, मतलब कि जो पुअर लोग हैं उनको पास क्लीनलीनेस का कम असेस है। अब इसमें भी कंपेयर कर रहे हैं, लेस आ जाएगा। देयर आर फ्यूअर कार्स हियर, यहाँ पर जो कार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो क्या आ जाएगा, फ्यूअर। Now others में, there are many other determiners that are used in the English language and cannot be put under any fixed category. So all is mostly used with a plural verb followed by a countable plural noun, मतलब कि हम all use करते हैं ज़्यादातर एक plural verb के साथ, और followed मतलब कि all के साथ में क्या लगा होता है, countable plural noun. For example, all children cannot be treated in the same manner, हम हर एक बच्चे को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या, चिल्ड्रन है, काउंट कर सकते हैं हम उन लोग को, और चिल्ड्रन क्या एक प्लूरल नाउन है, तो हमने क्या लगाया, ऑल। बोथ, दिस डिटर्मिनर इज मोस्टली यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि अगर दो चीज़ें हैं एक ही किस्म की तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बोथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर अ मूवी, मतलब कि रमन और राघव दोनों मूवी के लिए गए। अब सेम काइंड मतलब क्या आ जाएगा इसमें, मतलब मूवी के लिए दोनों जने गए हैं। ही हेल्ड ऑरेंजेस इन बोथ हिज हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों में ऑरेंजेस पकड़े। Either and neither, these determiners usually refer to two persons or things but show that one out of the two is or is not involved in a situation, मतलब कि जो हम ये वाला determiner है either and neither, हम दो लोगों के लिए या दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि एक तो involved है situation में और दूसरा नहीं है। Neither is used mostly with the singular nouns and by either it can mean both of the two things. For example, टेक ईदर साइड ऑफ द बेड, बोथ आर द सेम, उसने बोला है कि उन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो, दोनों सेम ही तो हैं। नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ, उन दोनों में से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। नाउ ईच एंड एवरी, these determiners are used to refer to all the members of a group, अगर हमें एक ग्रुप के या फिर कोई पर्सन्स बताने, हर एक बंदे को, हर एक इंसान को हमें स्पेसिफिकली बताना है कि सभी लोग इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ईच एंड एवरी। When we talk about members as individuals, मतलब कि अगर हमने एक ग्रुप के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करना है तो हम क्या वो यूज़ करेंगे, ईच। और एंड व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑफ देम, अगर हमने इकट्ठे उन लोगों के बारे में कुछ कहना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एवरी। फॉर एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी बोर्ड मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब कि हर एक बोर्ड मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट था।
टुडे अ लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर कैन बी सीन इन ईच हाउस, मतलब कि हर एक घर में आज एक एयर कंडीशनर और एक लैपटॉप देखा जाता है. एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव हिज और हर ओन स्पेशल एबिलिटीज़. हर एक बच्चा, मतलब कि हर एक बच्चे के अंदर माना जाता है कि उनकी अलग अलग यूनिक एबिलिटीज़ हैं. नाउ वन, this determiner is used when we are talking or writing about a group and we want to say something about a particular member of the group. मतलब कि ये वाला हम कब यूज़ करते हैं डिटर्मिनर, जब हम किसी ग्रुप के बारे में लिख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं और हम कुछ कहना चाहते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, आई नो वन रेस्टोरेंट वेयर यू कैन गेट अमेजिंग चाइनीज़ फूड. मतलब कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में से वो कह रहा है कि मुझे एक रेस्टोरेंट पता है जहाँ पर तुम्हें अच्छा सा चाइनीज़ फूड मिल जाएगा. One man was falsely framed in a murder case. मर्डर केस के अंदर एक आदमी को झूठा फंसाया गया. Another, it can be used with a singular countable noun to talk about an additional person or thing of the same type. For example, can I have another cup of coffee? मतलब एक कप ऑफ कॉफ़ी, या वो पहले ही ले चुका है, वो पूछ रहा है कि क्या मैं एक और कप ऑफ कॉफ़ी ले सकता हूँ. He opened another branch last month. मतलब कि पहले से ही बहुत सारी ब्रांचेस उसकी एग्जिस्ट कर रही थी, अब उसने एक और ब्रांच खोल ली. Other, this determiner is used with plural nouns or sometimes with uncountable nouns. Example से बेटर समझ आएगा. Other people might not have thought like this. मतलब बाकी लोगों ने ऐसा शायद नहीं सोचा होगा. The students are busy in other activities rather than participating in the maths class. मतलब कि उसने बोला जो बच्चे हैं वो बिजी हैं बाकी एक्टिविटीज़ में और मैथ्स की क्लास को छोड़ के जो एक्टिविटीज़ रह जाती हैं उनमें बिजी हैं. Enough. The determiner enough is used before uncountable noun. हम जो enough determiner है वो uncountable noun, मतलब कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके ऊपर यूज़ होता है, या फिर plural nouns के ऊपर. To say that there is something that is sufficient and enough as much as needed. मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो सफिशेंट है, जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है. द होटल हैड इनफ रूम्स फॉर ऑल द गेस्ट. सब गेस्ट के लिए उस होटल के अंदर इनफ रूम्स थे, मतलब कि सफिशेंट रूम्स थे. दे डिड नॉट हैव इनफ स्टोरेज टू स्टोर ऑल दैट दे हैड ऑर्डर्ड फॉर. मतलब कि उन्होंने जिस जब चीज़ के लिए ऑर्डर किया था उनके पास उतनी तो स्टोरेज थी ही नहीं कि वो सब चीज़ को वहाँ पर रख सकें. मोस्ट इज़ यूज टू इंडिकेट नियरली ऑल ऑफ एन अमाउंट और अ ग्रुप. मतलब कि एक ग्रुप या एक अमाउंट की हर एक चीज़, हर पूरे का पूरा हम उसको कंसिडर कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिकवर फ्रॉम दिस फैटल डिसीज़. मतलब कि ये जो डेंजरस सी डिसीज़ जो फैल चुकी है, बहुत सारे लोग उसे रिकवर नहीं कर पाते. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग क्लास. इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग क्या हैं, वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं. Several, it is usually used to indicate an imprecise number that is not very large but more than 2. मतलब कि अगर हमें कोई एक नंबर के बारे में बताना है जो 2 से ज़्यादा हो, जो क्वांटिटी है, जो चीज़ है वो 2 से ज़्यादा है बट काफ़ी ज़्यादा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर सेवरल डेथ्स ड्यूरिंग द फ्लड्स इन यूपी. जब यूपी के अंदर फ्लड्स आए थे तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. अब हमें नहीं पता कितने हुए हैं, तो उसने बोला कि 2 से ज़्यादा है बट इतने भी ज़्यादा नहीं है. There were several cases of fraud pending against him in the court. कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं. So these were the determiners. We are going to start with a new topic, that is clauses. So consider a sentence, I like English grammar. हमने एक सेंटेंस कंसिडर किया कि I like English grammar. मुझे इंग्लिश ग्रामर पसंद है. अब डेफिनेटली दिस इज अ सेंटेंस, बट यू नो दैट इट इज़ अ क्लॉज ऑल्सो. अब क्लॉज क्या होता है? Clause is a group of words which have their own subject, predicate, a finite verb and may or may not be independently meaningful. मतलब कि क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके पास खुद का एक सब्जेक्ट है, खुद की एक वर्ब है और शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्या? इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल. क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस. पहली टाइप क्या है? इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज. इंटरेस्टिंगली, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब एंड कैन मेक द कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स. मतलब कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसके पास खुद का सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब होती है और जो उनका खुद का मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डार्क, यू शुड गो. ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ सेल्फिश. अब इसमें ही इज़ इंटेलिजेंट क्या हो रहा है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. मतलब कि इसके पास एक सब्जेक्ट भी है. सब्जेक्ट क्या है? ही. वर्ब इज और उसके बाद इंटेलिजेंट. आई वॉन्ट टू कम बट आई हैव सम वर्क टू डू. आई वॉन्ट टू कम भी क्या हो जाएगा इसके अंदर? इंडिपेंडेंट क्लॉज.
डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज. एज द नेम सजेस्ट, डिपेंडेंट क्लोजेस नीड एन इंडिपेंडेंट क्लोज. मतलब कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को क्या चाहिए होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट क्लोज को एक इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए. अगेन अ डिपेंडेंट क्लोज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. इसके पास भी एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एक वर्ब होती है, बट इट इज़ नॉट मीनिंगफुल. अब उसमें क्या था, इंडिपेंडेंट के अंदर जो क्लॉज था वो अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा था, बट इसमें वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना था. अब इसकी 3 टाइप्स है. द फर्स्ट वन इज नाउन क्लोज. A dependent clause that functions like a noun in the sentence and generally acts as the subject or verb of the object is known as a noun clause. मतलब कि एक डिपेंडेंट क्लॉज जो एक नाउन की तरह फंक्शन करता है, एक नाउन की तरह एक्ट करता है किसी भी सेंटेंस में, और उसके बाद उसने क्या बोला, एंड जनरली एक्ट एज अ सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है या किसी वर्ब की तरह एक्ट करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज़ नोन एज नाउन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट यू विल लाइक इट. मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आएगी. अब इसमें क्या है, दैट यू विल लाइक इट. हियर द नाउन क्लोज दैट यू विल लाइक इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थिंक. मतलब वो सोच रहा है कि मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आएगी. वेयर शी वेंट इज़ नॉट नोन टू एनीवन. जहाँ वो गई वो किसी को पता नहीं है. अब यहाँ पे वेयर शी वेंट क्या है, एक नाउन क्लोज है. नाउ एडजेक्टिव क्लोज. An adjective clause is an independent clause that act as an objective. अब उसमें noun clause में क्या था, वो जो clause था वो noun की तरह act कर रहा था. Adjective clause में जो clause है वो adjective की तरह act करेगा. For example, I used a notebook that had a red colored cover. मतलब मैंने वो वाली किताब, वो वाली notebook यूज़ करी जिसका जो कलर था वो red था. मतलब हम specify कर रहे हैं. अब एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो इसमें रेड कलर्ड कवर, तो इसके अंदर दैट हैड अ रेड कलर्ड कवर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज. द हैट विच वॉज मेड ऑफ जूट वॉज माई फेवरेट. मतलब कि जौन सी हैट जो जूट की बनी है वो मेरी फेवरेट थी. अब इसमें विच वॉज मेड ऑफ जूट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज. नाउ एडवर्ब क्लॉज. एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डज द जॉब ऑफ एन एडवर्ब. नाउन क्लॉज में जो क्लॉज था वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा था. एडजेक्टिव क्लॉज में जो क्लॉज था वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा था, और एडवर्ब क्लॉज में जो क्लॉज होगा वो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा. सिंपल इजंट इट. नाउ एग्जाम्पल इज वेट हेयर टिल आई कम. मतलब कि मेरा इंतजार करो जब तक मैं आता हूँ. अब टिल आई कम बैक क्या हो जाएगा इसके अंदर, एडवर्ब क्लोज. आई शेल बी लेट एज आई हैव अ मीटिंग. मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, तो इसमें एज आई हैव अ मीटिंग क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज. So these were the basic concept of clauses. We are going to start with a very new topic, that is prepositions. Not so new na. So let's begin. What is a preposition? A preposition is a word used to link nouns. मतलब कि एक preposition एक word है जो हम nouns को link करने में, pronouns को link करने में, या फिर phrases को बाकी words से link करने में use करते हैं. So they act to connect the people, objects, time and location of a sentence. मतलब कि लोगों को, objects को, time को, location को link कर देता है. So type of prepositions, prepositions of time. The first one is preposition of time. मतलब कि ऐसी prepositions जो कि time से related कुछ हों, जैसे at, on, in, before and after. They are used to help indicate when something happened, happens or will happen. मतलब ये वाली preposition हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो indicate करती हैं कि कुछ होने वाला है. So I was born on July 4th 1982. तो वो बोलता है कि मैं कब born हुआ, July 4th 1982. अब हम time बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हम क्या यूज़ करें, preposition of time, that is on. I was born in 1982. अगर हम ईयर बता रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, in. डेट बता रहे हैं on, ईयर बता रहे हैं तो in. I was born at exactly 2 AM. अब हम टाइम बता रहे हैं स्पेसिफिकली, 2 बजे में पैदा हुआ था, तो क्या यूज़ करें, at. I was born 2 minutes before my twin brother. अपने ट्विन ब्रदर से 2 मिनट पहले हुआ था, तो हम क्या यूज़ करें, before. That is a preposition of time. I was born after the Great War ended. जब Great War ख़त्म हुआ तब मैं पैदा हुआ. ख़त्म हुआ होने के बाद तो क्या यूज़ करेंगे, after. Preposition of place. So ऐसी prepositions that are used to indicate time, on, at, in and are also the most common prepositions to indicate position. मतलब कि जो position भी बता रही हूँ. For example, the cat is on the table. जो cat है वो table के ऊपर है. अब वो क्या बता रही है, position बता रही है उसके. The dogs are in the kennel. Kennel के अंदर है dogs, उसकी position बता रहा है in. We can meet at the crossroads. Crossroads पे हम लोग मिल सकते हैं. At भी क्या बता रहा है, उसकी position.
So preposition of movement, movement वाली. Preposition of movement are quite easy to understand as they are less abstract than prepositions of place and time. Essentially they describe how something or someone moves from one place to another. मतलब कैसे कोई चीज़ या कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वो preposition of movement के थ्रू हमें पता लगता है. For example, he has gone on vacation to France. मूवमेंट हुई है, उसकी वेकेशन पे गया है वो, तो क्या यूज़ करें? ऑन. She went to the bowling LA एवरी फ्राइडे लास्ट समर. कहाँ गई है? वेंट टू द. मूवमेंट हुई है उसकी. आई विल गो टू बेड व्हेन आई एम टायर्ड. जब मैं थक जाऊंगा तो मैं सोने चला जाऊंगा. मूवमेंट हो रही है, थक गया है, फिर सोने चला गया, बेड पे जा रहा है, तो गो टू बेड. दे विल गो टू द जू इफ दे फिनिश देयर एरंड्स. Prepositions with nouns. He displayed cruelty towards his dog. Cruelty towards his dog. जो उसने क्या दिखाई? Cruelty दिखाई किसकी तरफ? Dog की तरफ. तो towards क्या हो जाएगी हमारी preposition. She had knowledge of physics. उसको काफ़ी knowledge है किसकी? Physics की. Of. The trouble with Jack. 21 is the age at which you are allowed to drink. Age at. So now Bolt made another attempt at the world record. Attempt के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? At. So the police held an inquiry into the murder. Into the murder. Now prepositions with verbs. He admitted to the charge. हमेशा admitted के साथ क्या लगेगा? To. He must apologize for his action. उसे अपने actions के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए. Apologize के साथ for. I don't agree with your claim. मैं तुम्हारे claim के साथ agree नहीं करता. Agree के साथ with. Prepositions with adjectives. I'm happily married to David. I am happily married to David. तो क्या हो जाएगा? To David. Happily married to David. LA is crazy about this movie. About क्या हो जाएगा? Preposition. Crazy किसके लिए? Movie के लिए. Michelle is interested in politics. जो Michelle है वो interested है किसके अंदर? Politics के अंदर. We are sorry for your loss. For your loss. Sorry है किसके लिए? तुम्हारे loss के लिए. So these were the adjectives and its type. We are going to start with a new topic, that is reported speech. What is reported speech? A reported speech is when you tell somebody else what you or a person said before. मतलब कि reported speech क्या है कि आपको किसी ने कुछ कहा है और आपने वो मैसेज थर्ड पर्सन को कन्वे करना है, तो आप कैसे करेंगे? So different types of sentences. When you use reported speech, you either report, या जब हम reported speech यूज करते हैं या तो हम रिपोर्ट करते हैं सेंटेंस स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को, या रिक्वेस्ट को, या कमांड्स को. So reporting statements. When transforming statements, check whether you have to. जब हम स्टेटमेंट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें चेक क्या करना है कि हमें प्रोनाउंस को रिपोर्ट करना है, टेंसेस को, और प्लेस और टाइम के जो एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं सेंटेंसेस में वो. पहली बात, सबसे पहले टर्म प्रोनाउंस को हम कैसे रिपोर्ट करते हैं. इन रिपोर्टेड स्पीच यू ऑफन हैव टू चेंज द प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन हु सेज व्हाट. मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें ज़्यादातर क्या चेंज करना पड़ता है? प्रोनाउन. जैसे कि किसने क्या बोला और कैसे बोला. अब जैसे मैंने बोला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आई वॉन्ट दिस थिंग. अब वो जाकर तीसरे इंसान को अगर उसने कन्वे करना है, वो ये तो नहीं बोलेगी आई वॉन्ट दिस थिंग, मुझे चाहिए थी ना, उसे नहीं चाहिए थी, तो वो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा. So, if for example, she says my dad likes roast chicken. वो क्या बोलती है? मेरे डैड को रोस्ट चिकन पसंद है. तो इसको अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच, इट विल बी she says that her dad likes roast chicken. मतलब कि वो बोलती है, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएंगे? दैट में. ठीक है, अब माई डैड तो नहीं बोलेंगे, उसने कहा था. अब माई का किस में चेंज हो जाएगा? हर डैड लाइक्स रोस्ट चिकन. टेंसेस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ही सेज आई राइट पोएम्स. वो कहता है कि मैं पोएम्स लिखता हूँ. कहा किसने? उसने कहा कि मैं पोएम्स लिखता हूँ. अगर आपको कन्वे करना होगा तो आप क्या करेंगे? ही सेज दैट ही राइट्स पोएम. लिखता मैं नहीं, वो उसने कहा था मैं लिखता हूँ, तो ही सेज दैट ही राइट्स पोएम. जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हमने दैट में चेंज कर दिया और आई किस में चेंज हो गया? ही में. ही सेड शी माइट बी राइट. उसने बोला, किसने बोला? उसने बोला कि शायद वो सही है. फिर से ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स विल बी चेंज इनटू दैट शी माइट बी राइट. नाउ डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच. अब सबसे पहले हम पहला टेंस कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट. ही सेड आई एम हैप्पी. उसने कहा आई एम हैप्पी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट में. ही सेड आई एम हैप्पी विल बी चेंज टू ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी. इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने दैट में चेंज कर दिया. जो एम प्रेजेंट टेंस में था हमने उसे सिंपल पास्ट में चेंज करके वॉस लगा दिया, और जो आई है वो ही में चेंज होगा क्योंकि उसने कहा था कि वो खुश है.
सेकेंड वन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ही सेड आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, उसने बोला कि मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में चेंज कर दिया, ही सेड दैट। अब आई किस में चेंज हो जाएगा, उसने कहा था वो चाबियां ढूंढ रहा था, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। अब लुकिंग फॉर माई कीज, आई एम लुकिंग, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में, तो आ जाएगा वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज। नेक्स्ट वन सिंपल पास्ट, ही सेड आई विजिटेड न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, उसने बोला कि मैं पिछले साल न्यूयॉर्क गया था। फिर से हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में चेंज करेंगे, ही सेड दैट। अब आई विजिटेड, सिंपल पास्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आई विजिटेड क्या हो जाएगा, आई को ही में कन्वर्ट कर देंगे एंड सिंपल पास्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड विजिटेड न्यूयॉर्क द प्रीवियस ईयर। अब लास्ट ईयर किस में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में। हमने किया था ना कि हम लोग टाइम में और पोजीशन भी चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बोला कि मैं इस जगह पर काफ़ी टाइम से रह चुका हूँ। तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर देंगे, आई हैव को आई विल बी चेंज इनटू ही, हैव इनटू हैड, लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हेयर का देयर हो गया। पास्ट परफेक्ट, ही सेड दे हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन आई अराइव्ड, ही सेड उसने बोला कि वो लोग काम खत्म कर चुके थे जब मैं पहुंचा। ही सेड वैसे का वैसा, इन्वर्टेड कॉमास इनटू दैट एंड दे हैड फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, दे हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन आई की जगह हो जाएगा ही अराइव, ही हैड अराइव्ड। आई अराइव्ड क्या था, सिंपल पास्ट में है, हम लोग को इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट प्रोग्रेसिव, ही सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, उसने बोला कि मैं फुटबॉल खेल रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। ही सेड को किसमें, ही सेड वैसा ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स इनटू दैट एंड आई वॉज का क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा, फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट हैड अकर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से फुटबॉल ही खेल रहा हूँ लगातार। ही सेड का ही सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स इनटू दैट, आई विल बी चेंज इनटू ही, हैव बीन प्लेइंग इनटू हैड बीन प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। Now past perfect progressive, he said I had been reading a newspaper when the light went off, उसने बोला मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब लाइट चली गई, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, he said that, inverted commas into that, I had been का हो जाएगा, he had been reading a newspaper when the light went off, simple past में था, it will be changed into past perfect, that is had gone off. Future simple, he said I will open the door, उसने कहा कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, he said that, I will be changed into he and will का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म would, he would open the door. अब प्लेस कैसे चेंज करनी है, प्लेस, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड टाइम एक्सप्रेशंस। सो टुडे विल, अब किसी भी सेंटेंस के अंदर टुडे, नाउ, येस्टरडे, डेज अगो, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, टुमारो या कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम बता रही हो, उसको हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। टुडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे, नाउ इनटू देन, येस्टरडे द डे बिफोर, डेज अगो को डेज बिफोर में, लास्ट वीक को द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। नाउ रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग क्वेश्चंस चेक वेदर यू हैव टू चेंज, अब हमने क्या चेक करना है, प्रोनाउंस चेंज करने हैं, प्लेस और टाइम के एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं, टेंसेस चेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते हो। ही, अब वो क्वेश्चन कर रहा है किसी से, तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड मी, किससे पूछा, मुझसे पूछा, मी, वाई आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, डोंट किस में चेंज हो गया, डिडंट में, ठीक है। प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर से क्वेश्चन कर रहा है, ही आस्क्ड मी, अब वो पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेदर यूज़ करेंगे या इफ़। ही आस्क्ड मी वेदर और इफ़ आई स्पोक इंग्लिश, स्पीक किस में चेंज हो जाएगा, स्पोक में। रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट और कमांड्स, व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड कमांड्स चेक वेदर यू हैव टू चेंज प्रोनाउंस, प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशंस। तो फॉर एग्जाम्पल, शी सेड सिट डाउन, उसने क्या बोला, बैठ जाओ। शी आस्क्ड मी, उसने क्या किया, कमांड दी है, शी आस्क्ड मी किस चीज़ के लिए, टू सिट डाउन। शी सेड डोंट बी लेजी, उसने क्या बोला कि लेजी मत बनो। शी आस्क्ड मी not to be lazy, don't किस में चेंज हो गया, not to be lazy. So these were the basic rules of the reported speech. We are going to start with a new topic, that is subject verb concord. So आपको पता होगा, you already know what subject and verb is.
सब्जेक्ट क्या होता है? जो इंसान काम कर रहा होता है या फिर उस सेंटेंस का जो मेन पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। नाउन और अ प्रोनाउन दैट टेल अस व्हाट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट, सेंटेंस में क्या हो रहा है। एंड वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन इन द सेंटेंस, और वर्ब क्या बताते हैं कि क्या काम किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा? सो इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस शुड एग्री और मैच, अदरवाइज द सेंटेंस विल नॉट साउंड राइट। मतलब कि जो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच करने चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में होने चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। रूल 1, द वर्ब एंड द सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर। मतलब कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही क्या है? सिंगुलर। हम एक इंसान की बात करें तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर लगेगी। नाउ दे प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब दे क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। अब दे अगर प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। रूल 2, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट चेंज ड्यू टू द वर्ड्स और फ्रेजेस इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। मतलब द बुके ऑफ रेड रोजेस स्मेल्स सो स्वीट। अब इसके अंदर बुके इज द सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? बुके। रोजेस सब्जेक्ट नहीं है। बुके ऑफ रेड रोजेस, जो बुके बना है रोजेस का बना गया है, स्मेल्स सो स्वीट। अब इसमें बुके यूज हो रहा है, बुके हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, एंड स्मेल्स क्या है? वर्ब। अब बुके क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर लगेगी। इसमें रोजेस सब्जेक्ट नहीं है। The bouquet of red roses smells sweet. Since bouquet is a subject and not roses, the verb should be smells, not smell. Rule number 3, subjects that are joined by and in a sentence use a plural verb. मतलब कि जो subject and से join किए गए हैं एक sentence के अंदर, उसके अंदर हम क्या use करेंगे? plural verb. For example, राधा and मीरा are coming home. राधा और मीरा घर आ रही हैं। राधा और मीरा क्या है? एक सब्जेक्ट है अलग अलग, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया गया किससे? एंड से। सो नाउ नीदर अक्षय नॉर रोहित इज कमिंग, ना ही अक्षय और ना ही रोहित आ रहे हैं। अब नीदर और नॉर यूज कर रहे हैं हम लोग। नाउ माई डैड और माई मॉम इज अराइविंग टुडे। माई, या तो मेरी मॉम या फिर मेरे डैड आज आ रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? एक सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। Now rule number 4, the verb in a sentence containing or, either or, neither nor agrees with a noun or pronoun closest to it. मतलब कि अब जो neither और nor के एकदम पास में जो noun और pronoun होगा उसके अकॉर्डिंग वो आनी चाहिए। मतलब कि जैसे neither the shoes nor the bag matches the dress. उसने क्या बोला है? ना ही शूज़ ना ही जो बैग है वो ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं। अब इसमें बैग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, हेंस मैचेस। अब देखो मैचेस क्या है? वर्ब है। वर्ब के सबसे क्लोजेस्ट क्या है? बैग। बैग क्या है? सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पे शूज़ होता बाद में तो शूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच आना चाहिए था, पर हमारी वर्ब के सबसे क्लोजेस्ट क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब। नीदर द बैग नोर द शूज़ मैच द ड्रेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें मैच के साथ क्या आ रहा है? शूज़। शूज़ क्या है? हमारे प्लूरल, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल यूज़ होगी, तो इसलिए हमने मैचेस नहीं यूज़ किया, वो यूज मैच। रूल नंबर 5, व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, नॉट, इग्नोर देम एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब। मतलब कि जब सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज, अलोंग विद या बिसाइड्स आए तो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, मैट एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। मतलब मैट और साथ में उसका डॉग यहाँ पर आने वाले हैं जल्द ही। अब इसमें हम लोग एज वेल एज वगैरह किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज़ करिए? सिंगुलर वर्ब इज। प्रतीक अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, प्रतीक और उसका भाई साथ में इज गोइंग टू द स्कूल, क्या कहाँ जा रहे हैं? वो स्कूल जा रहे हैं। अब प्रतीक की बात करें हम लोग, प्रतीक हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब, दैट इज। रूल नंबर 6, in sentences that begin with here, there, the true subject usually follows the verb. मतलब कि जिन sentences में जो start होते हैं here या there से, तो हाँ जो हमारा subject है वो verb को follow करता है। मतलब here are the chocolates, मतलब कि ये रही चॉकलेट। सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? here से। अब उसने क्या बोला था? जो verb के एकदम साथ में क्या होगा? वर्ब के साथ में हमारे पास नाउन आ जाएगा। There is a big puddle in the road. रोड के अंदर एक बहुत बड़ा सारा एक puddle है। उसने क्या बोला है? there से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इस क्या हो जाएगा हमारा?
वर्ब और बिग बटल ऑन द रोड हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। रूल नंबर 7, in sentences that include sums of money, periods of time or distances etc. uses singular verb. For example, 500 rupees is a high price to pay. उसने बोला है जिसके अंदर हम लोग sum of money 500 के रुपीज़ क्या है, पैसे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। 62 years is the minimum age of retirement. अब जब हम एज की बात करें, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तब भी हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। 10 kilometers is too far to walk. डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज। अब गलती से आर मत लगा कर आना, जब भी हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, सम ऑफ मनी की बात करेंगे या फिर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8, in the case of words such as a lot of, all, some in a sentence, pay attention to the noun after of. मतलब कि जिन sentences के अंदर a lot of, all या some यूज़ होता है, उसके अंदर of के बाद कौन सा noun आ रहा है हमने वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल, all of the cake is gone, मतलब कि पूरा का पूरा केक चला गया, चलो खा लिया गया। केक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है हमारा, तो हमने जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ करी है। अब ऑल देख के बच्चे सोचते हैं ऑल मतलब बहुत सारे, हमें तो अब प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ऑल ऑफ द केक मतलब केक तो एक ही था ना, पूरा का पूरा वो। नाउ ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन, अब इसमें क्या है, ऑल ऑफ द केक्स, अब इसमें हमारी जो नाउन है वो क्या हो गया, हमारा नाउन भी क्या हो गया, प्लूरल, तो हमने वर्ब भी प्लूरल यूज़ की है। अ लॉट ऑफ द केक इज़ गॉन, अ लॉट ऑफ द केक, केक का बहुत बड़ा सारा पार्ट चला गया, केक तो एक था, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज। रूल नंबर 9, इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, population, family in a sentence, the verb can be singular or plural depending on their use in a sentence. For example, most of my family is here or are here. अब इसमें क्या होगा, इन द केस ऑफ अ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली इन अ सेंटेंस, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। मतलब कि जिस सेंटेंसेस के अंदर हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, ग्रुप, फैमिली, उनके अंदर जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उनका यूज़ कैसे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर और आर हेयर, या हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वर अगेंस्ट द बिल। अब हम इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आधी पॉपुलेशन थी वो अगेंस्ट थी बिल के, या फिर वॉज या वर। रूल नंबर 10, नाउन सच एज मैथमेटिक्स, civics, news, while plural in form are singular in meaning and use singular verbs. मतलब कुछ ऐसे words जैसे mathematics, civics, politics, news, ये क्या है, दिखने में तो plural है, plural ही है of course, news बहुत सारी, mathematics, mathematic नहीं होता, mathematics होता है, तो उसने बोला है while they are plural in form but are singular in meaning, का जो meaning है वो singular है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स है वो डिफ़िकल्ट है, मैथमेटिक्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज़। द न्यूज़ इज़ वेरी सैडनिंग, दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट, द न्यूज़ इज़, अब न्यूज़ के साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज़। रूल नंबर 11, द लास्ट वन, इन सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस अ विश, जौन सी सेंटेंसेज में हम विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, और कॉन्ट्रारी टू द फैक्ट द वर्ड वर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉज। एग्जाम्पल समझाते हैं, आई विश माई सिस्टर वर हेयर, मैं विश करता हूँ कि मेरी बहन काश यहाँ होती। अब जब भी हम ऐसे करेंगे, काश ऐसा होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं ये कर सकता, वो कर सकता, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें कभी भी वॉज नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा वर यूज़ करते हैं। लाइक आदित्य रिक्वेस्टेड दैट शी रेज हर क्लास, आदित्य ने रिक्वेस्ट किया कि वो अपना क्लास रेज करे। So these were the rules of the subject, verb and agreement. We are going to start with a new topic, that is passive voice. So let's begin. सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में हम लोगों को पैसिव वॉइस कैसे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे करनी है। तो द रूल इज एम इज आर को एम इज आर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन किसकी बनी होती है, ग्रेप्स की, इज वर्ब आ गई, सेकेंड फॉर्म मेड। Many cars are made in Japan, are के साथ में made। Present progressive, am is are plus being plus साथ में जो verb होगी उसका second। The document is being sent right now, जो document है वो अभी send किया जा रहा है, is being sent। I am being sent to work in the London office, मुझे लंदन ऑफिस में काम करने के लिए भेजा जा रहा है, being sent। नाउ पास्ट सिंपल के लिए रूल क्या है, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जॉन वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, जॉन को इन्वाइट किया गया कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए, वॉज इन्वाइटेड।
वी वर इन्वाइटेड टू डैनियल एंड मैरीज वेडिंग, हमें डैनियल और मैरी की वेडिंग के लिए इन्वाइट किया गया, वर इन्वाइटेड। पास्ट प्रोग्रेसिव, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द डॉग वॉज। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें उल्टा हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो वर्ब होती है हम उसे चेंज कर देते हैं पास्ट फॉर्म में। द डॉग वॉज बीइंग वॉश्ड, देयर कार्स वर बीइंग वॉश्ड। नेक्स्ट वन, फ्यूचर, विल बी के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइंड टुमारो, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, विल बी और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द डॉक्यूमेंट्स विल ऑल बी साइंड बाय नेक्स्ट वीक, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगले हफ्ते तक साइन कर दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं, विल बी साइंड। नेक्स्ट वन, फ्यूचर, एम इज आर गोइंग टू बी बिल्ट, मतलब कि जो हमारा वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी के साथ में टू बी, अ ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ट, ब्रिज क्या है, सिंगुलर, इज गोइंग टू बी, गोइंग टू बी मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी, टू बी बिल्ट विद इन द नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट 2 years। न्यू हाउसेज आर गोइंग टू बी बिल्ट इन आवर नेबरहुड, नए घर बनेंगे हमारे नेबरहुड में, न्यू हाउसेज प्लूरल है, आर आ जाएगा, गोइंग आईएनजी प्लस टू बी बिल्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ में बीन और साथ में वर्ब की पास्ट फॉर्म, दैट स्टार्टअप हैज बीन सोल्ड फॉर $5 million, मतलब वो वाला स्टार्टअप बेच दिया गया है $5 million में, हैज बीन सोल्ड। द राइट्स टू हिज बुक हैव बीन सोल्ड, मतलब कि जो उसकी बुक के राइट्स हैं वो बेच दिए गए, राइट्स क्या है, प्लूरल है, तो हमने वर्ब क्या यूज की है, हैव बीन सोल्ड। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द न्यू मैनेजर हैड बीन हायर्ड बिफोर जॉन लेफ्ट द कंपनी, जॉन के कंपनी छोड़ने से पहले ही नया मैनेजर हायर कर लिया गया है, हैड बीन हायर्ड किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर हम लोग के यूज करेंगे। ऑल द एम्प्लॉयज हैड हायर्ड बिफोर द स्टोर ओपन्ड, वैसे ही हैड हायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हैड। फ्यूचर परफेक्ट, will प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, द कार विल हैव बीन, जो कार है विल हैव बीन लोडेड बाय द टाइम ही गेट्स होम, अब क्या यूज करेंगे, मैंने बताया विल साथ में हैव बीन और वर्ब की पास्ट फॉर्म, द क्रैट्स विल हैव बीन लोडेड बाय देन। मॉडल्स के साथ कैन कुड के साथ, कैन कुड के साथ में बी प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, अ पासपोर्ट कैन ओनली बी इशूड बाय द एट द एम्बेसी, उसने बोला है जो पासपोर्ट है सिर्फ एम्बेसी से ही इशू किया जा सकता है, कैन ओनली बी इशूड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है साथ में कैन। ही सेड द डॉक्यूमेंट्स कुड बी इशूड विद इन द वीक, जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही वीक के अंदर इशू हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कुड यहाँ पे क्या हो गया, मॉडल हमारा, और साथ में इशूड वर्ब की पास्ट फॉर्म। अब जब मॉडल हो हैव टू सेंटेंस के अंदर, तब हम कैसे यूज करेंगे, हैव टू या हैज टू या हैड टू, कुछ भी हो, साथ में बी लगाएंगे और वर्ब की पास्ट फॉर्म, लाइक अ बेबी सिटर हैज टू बी अरेंज्ड फॉर दिस इवनिंग, इस इवनिंग के लिए बेबी सिटर अरेंज करना है, हैज टू क्या हो गया हमारा मॉडल, साथ में बी वर्ब की पास्ट फॉर्म। जॉन्स ट्रेवल प्लान्स हैव टू बी अरेंज्ड बाय दिसंबर, हैव टू मॉडल हो गया, साथ में क्या लगाएंगे, बी और वर्ब की पास्ट फॉर्म। अगर वर्ब मॉडल कौन सा यूज करें, मस्ट, तो मस्ट के साथ में बी और साथ में वर्ब की पास्ट फॉर्म। क्रिमिनल्स मस्ट बी स्टॉप्ड बिफोर दे कमिट क्राइम्स, मतलब कि क्रिमिनल्स को रोका जाना चाहिए जब उनके क्राइम करने से पहले, मस्ट यूज हो गया, साथ में हम लोग बी लगाएंगे और वर्ब की पास्ट फॉर्म। So these were the rules of the passive voice, and with that our grammar syllabus has been completed. So keep revising and all the best for your exams.